السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ریڈرز؟ تو آج کی ایپیسوڈ دل تھام کے پڑھنے والی ہے کیونکہ آپ کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے والی ہے۔ اپنے رزق پر پڑھیے گا تو میں بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں ایپیسوڈ 74 کی طرف۔ پارس وائلڈ فلاور مین بائی ایس مروہ مرزا ناولز۔ لیٹس سٹارٹ۔ مجھے بس تھوڑے سے ملے بابا، میں ان کو پھر سے گلے لگانا چاہتی تھی۔ ماما نے ان کو گھر سے نکالا تھا تو میں گیٹ تک پیچھے گئی تھی۔ انہوں نے کہا میں پھر آؤں گا مائما۔ مجھے پتا ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، میں بھی بھاگ جاتی ان کے ساتھ۔ حاتب کے سینے لگی وہ اپنی محرومی پر سسک رہی تھی۔ رہ رہے آنسو آنکھوں میں اتر رہے تھے۔ بابا سے ہوئی پہلی اور آخری ملاقات تمام عمر کی حسرت بن کر رہ گئی۔ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میری دوسری سزا سن لیں۔ وہ اس کا حصار جھٹک کر پیچھے ہوئی تو حاتب نے اس کی بھیگی آنکھیں بمشکل ہمت سے دیکھی۔ بتاؤ کیا سزا ہے دوسری؟ حاتب نے اس کے دونوں کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ میں آپ کا کبھی نام نہیں لوں گی۔ شاید یہ بہت معمولی سزا تھی لیکن اس کی تکلیف صرف حاتب کا دل جانتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے اپنا نام امائمہ، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ وہ ایسے کرب کو جھیلنے سے پہلے احتجاج کر اٹھا۔ گناہ بھی تو بڑا ہے۔ تیسری اور آخری سزا بھی سن لیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو حاتب کے ہاتھوں سے چھڑواتی جب دور ہوئی تو حاتب نے سانس بڑی دقت سے لیتے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ، وہ حلق میں بنے درد کے دائرے کے باوجود بولا۔ میں آپ کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھوں گی، بس اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے میری طرف سے۔ وہ چہرہ پھیرے جا کر ہچکیاں برتی میٹرس پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں میں میٹرس کی شیٹ برتے آنسوؤں کو آنکھوں میں وہ مشکل قید کیے۔ امائمہ تم میری آنکھوں میں نہیں دیکھو گی تو میں دنیا نہیں دیکھوں گا۔ وہ اس بار اس کے پاس بیٹھا۔ تینوں سزائیں حاتب کے لیے سولی پر لٹکنے سے زیادہ بری تھیں، سینے میں تیر کی طرح اتر گئی تھی۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے حاتب، لیکن وہ میرے بابا تھے جن کے لیے میں بچپن سے اتنا تڑپی ہوں جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ماما کی جگہ میرے ہر درد پر بھی جان تڑپتی تھی تو ہر اس لمحے میرا دل بابا کو پکارتا تھا۔ میں ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، ہنسنا چاہتی تھی، جتنے وہ ابیا کو ملے مجھے بھی ملنے چاہیے تھے۔ یہ چیٹنگ ہے، میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ ہو گئی۔ میں نہیں دیکھ سکتی اب آپ کی آنکھوں میں آپ کا نام نہیں پکار سکتی۔ یہ ممکن نہیں رہا۔ اٹس ریئلی ہرٹنگ۔ میں بہت انلکی ہوں، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اس کے ہر جملے کو سہ گیا پر آخری برداشت لائق نہ تھا۔ اسے اپنے سینے میں بساتے ایسی فضول گوئی سے روکا۔ شش، تم انلکی نہیں ہو، دوبارہ ایسا مت کہنا۔ تم مجھے یہ تینوں سزا دو لیکن ایسی بات دوبارہ تمہاری زبان پر نہ آئے۔ وہ حاتب کے گرد بازو لپیٹتی آنسو بہاتی اس کی بات سن رہی تھی، پر بہت تکلیف تھی کہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس آپ اور اپیا بچے ہیں میرے پاس، اس سے پہلے مجھ سے یہ دو بھی چھن جائیں، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ بنجی بنجی سانس کھینچ کر وہ نگاہیں نیچی کیے بولی۔ آنکھیں آنسوؤں نے دھندلا دی، جبکہ وہ ایسی بات خود کے لیے کیسے کر گئی یہ سوچ کر حاتب کی سنہری آنکھیں سرخی مائل ہو گئی، گویا ضبط کی تنابیں چھوٹنے والی تھی۔ حاتب نے اس کا چہرہ تھوڑی سے جبرن اوپر کرنا چاہا تو وہ بری طرح اس کا ہاتھ جھٹ کے میٹرس پر اوندھی جا گرتی، چہرہ اپنی بازوؤں میں چھپا گئی۔ نہیں دیکھنا مجھے آپ کی طرف، لیو می الون پلیز۔ جس اذیت اور دماغی دباؤ میں حاتب نے اسے ڈالا یہ اس کا رد عمل فطری تھا۔ اس لڑکی کا دل بہت بری طرح زخمی تھا کہ وہ سانس بھی لے رہی تھی تو سینے میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ میں مناؤں تمہیں امائمہ؟ وہ اس کے میٹرس پر پھیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف آزردگی سے جھکا، آواز میں لرزش اتر آئی تھی۔ نو، وہ اپنا درد بانٹنے کے حق میں ابھی نہیں تھی۔ حاتب نے اسے پوری قوت لگاتے پکڑ کر کروٹ بدلائے سیدھا کیا تو وہ اسے نہ دیکھنے کے لیے روتی ہوئی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ حاتب کے لیے یہ موت سے بدتر تھا۔ میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گا، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ اس سے اچھا ہے تم مجھے چھوڑ دو مائمہ تاکہ ایک ہی بار تمہارا یہ مجرم مر جائے۔ یہ تینوں سزائیں قطرہ قطرہ میں نہیں جھیل سکتا۔ سن رہی ہو یا کانوں پر بھی میری آواز حرام کرنے کی چوتھی سزا بھی دے چکی ہو؟ وہ بری طرح چیخ پڑا۔ امائمہ کی دی سزائیں معمولی کہاں تھیں کہ وہ مضبوط حساب والا بھی برداشت کر سکتا۔ وہ آنکھیں تو کھول چکی تھی پر حاتب سے منہ موڑ لیا۔ اس کا وجود مٹی کے ڈھیر کی طرح ساکت تھا، لب خاموش تھے تو آنکھیں بے رحم پتھر، لیکن دل کرلاہٹیں مچاتا دڑک رہا تھا۔ امائمہ، وہ اس کا منہ پھیرنا برداشت نہ کر پاتے اسے پھر پکارا۔
पर वो अपने दुख को भी हातिब की हर अजियत से बड़ा महसूस कर रही थी। मैं नहीं छोड़ सकती आपको, पर आप मुझे छोड़ सकते हैं। मैं चली जाऊं बहुत दूर, ना पिया से मिलूंगी ना आपसे। मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे नहीं जीना। मुझे भी छोड़ दे मेरे हाल पर, खुदा का वास्ता है। फिर जैसे वो पत्थर चटक गया। हातिम ने इसकी हालत आजाद की और बिना कुछ कहे उठकर पलट गया। इस सुनहरी आंखों का गिराव करती सुर्खी इस शख्स की ना दिखाई देती करी और जारी का राज खोल रही थी। ठीक है, तुम मुझे सजा दे लो, जब तक नाम लेकर नहीं पुकारोगी मैं वापस नहीं आऊंगा। मायमा, छोड़ दिया तुम्हें और खुद को अपने अपने हाल पर। ये चंद जुमले कहते हातिब ने अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जमा की और कहते ही अपना फोन साइड से उठाए रूम से निकल गया। तो मायमा ने वापस करवट बदलते चेहरा बाजुओं में छुपा लिया, पर हातिब ने बाहर आकर दीवार को थामा था। हाँ, अमीर हातिब मुकद्दम जिंदगी में पहली बार लड़खड़ाया था, और वल्लाह उसकी आंखें जहन्नम की तरह सुलग रही थी। तुम इस मिशन से दूर रहो, घर जाओ, शाबाश। एयरपोर्ट से निकलते ही गाड़ियां दोनों के लिए मुंतजिर थीं, पर पारस के एकदम बदलते फैसले पर रुशाने का दिमाग घूम गया। व्हाट? लगता है वस्ल की सुबह और रात का खुमार कुछ ज्यादा सर चढ़ गया आपको पारस। ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों दूर रहूं? वो तिलमिला उठी, तभी समझ आई मिसाल कैसी दे रही है। क्योंकि अभी मुझे मुहाफिज की कतन जरूरत नहीं, ये मामूली काम है। आई स्वेयर मैं कुछ घंटे तक तुम्हारे पास हूँगा। पारस ने इसे पकड़कर अपने लोगों की गाड़ी में बिठाना चाहा, पर वो मजाहमत करती वापस बाहर आई। हम जब आए तो डिसाइड किया था ना कि जो करेंगे साथ करेंगे। अगर आपकी मेमोरी ना आई होती बाखुदा, अब तक मैं इस इस्माइल की मौत बन चुकी होती। मुझे इससे मत रोके पारस, मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी। वो टूटे बिखरे लहजे के बावजूद अपने आप को संभालती बराबर मुकाबला कर रही थी। मतलब कोई प्लान बना रही थी तुम? पारस ने उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ खींचा। सब गार्ड्स की नजरें झुकी थी। हाँ, आपसे छुपकर। अगर अब भी आपने मुझसे जिद की तो आपको बांध कर भी अभी भी अपने मिशन पर अमल कर सकती हूँ। आप होंगे इटली के पैरासाइट, लेकिन मैं फारस सुल्तान की बेटी हूँ। मुझसे मस करने की कोशिश मेरे लाडले होकर भी ना करें, वॉर्न कर रही हूँ। वो उंगली हवा में लहराए सख्त लहजे में बावर करवाती। सरता पैर गजबनाक लग रही थी। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? पारस ने उसकी बाजू पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी की बैक साइड बिठाकर डोर बंद किया। जब तक मैं ना कहूँ ये घर से निकलनी नहीं चाहिए, समझ गए तुम लोग? पारस ने तमाम गार्ड्स को कहरालूद निगाहों से तकते वार्न किया, और आखिरी बार जब रुशाने पर निगाह डाले पलटा तो वो विंडो पर मुक्का बरसाती खा जाती नजरों से घूर रही थी। पारस, ही आपने मुझे छेड़ने वाला काम करके अच्छा नहीं किया। फ्रंट सीट पर बैठे गार्ड पर इससे पहले रुशाने कुछ उठाकर दे मारती। हाथ में पकड़ा फोन रिंग किया। आप मुझे यूं छुपाकर साबित कर रहे हैं कि मैं आपकी कमजोरी हूँ पारस। मैं आपसे सख्त नाराज हो जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाएं खुदा के लिए। अब जब सबसे ज्यादा आपको मेरी जरूरत है, अब मुझे खुद से उतार कर फेंक रहे हैं। पारस, मत करें। कॉल पारस की थी, जो अपने लोगों के साथ इस्माइल के कैंप रवाना हो चुका था। बीच में उनका अपना कैंप स्टे था ताकि हमले की तैयारी कर सकें। मैं अपने जीने की वाहिद वजह के लिए ऐन वक्त पर कमज़ोर पड़ गया हूँ रुशाने। ये मेरी लड़ाई है और इसमें हिफाजत नहीं, इंतकाम ज़रूरी है। तुम इस बार मेरी हिफाजत बस महफूज रह कर करो। मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद हैं, और अगर तुम्हें कुछ हुआ मैं दूसरी सांस नहीं ले सकता। वो इस्माइल मुझे नहीं तुम्हें टारगेट बना चुका है, क्योंकि जान गया है मेरी जान तुम में है, समझी? वो शांत ना हुई, उल्टा तड़प उठी। नहीं समझी। सुना आपने? वो हाफिज होकर यूं छुप कर बैठना मेरे फर्ज की तौहीन है, और मैं आपको इसके लिए कभी नहीं बख्शूंगी। पारस सीसा मुगलानी। वो गुस्से और तकलीफ की मिली जुली कैफियत में फोन ठक से कौट गई, जबकि पारस ने फोन मुट्ठी में बेच कर गहरी सांस लेते इसे डैशबोर्ड की तरफ स्विच ऑफ करे उछाल दिया। रोशाने को वो लोग घर ड्रॉप करे बाहर से लॉक के करके आसपास ही पहरे पर थे, क्योंकि पारस किसी सूरत आज रुशाने पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो घर तो आ गई, पर बेबस ऐसी थी कि दिल चाह रहा था हर शय तहस नहस कर दे। अच्छा नहीं किया मेरे साथ आपने। वो लान में इस्तरारी अंदाज से चक्कर काटे ही कि उसकी बेबस पुकार में लर्जिश उतर आई। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। रोशाने ने कुछ देर तो रात के इस पल खुद को बेबसी के हाथों तड़पाया, पर फिर एक ही वाहिद सहारा और रास्ता हदायत बाबा की सूरत नजर आया। तभी इसने फौरन इनसे राब्ता किया। पारस से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए लोग भेज रहा हूँ।
सारा मामला जानकर हिदायत बाबा की बरहमी सामने आई। हालांकि अगर वो असल मुद्दा जानते तो यकीनन इस अमल को पारस की अक्लमंदी और दूरंदेशी समझकर सराहते। प्लीज बाबा, जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है। मैं पारस को आज अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मौत के मुंह में है। प्लीज हेल्प मी हिदायत बाबा। वो हित परेशान थी, आवाज टूट रही थी तो लहजा भीग रहा था। मिलकर इस पर उसके कान खींचे कि मैं निकलवाता हूँ तुम्हें, पर ध्यान रखना अपना। हिदायत बाबा शायद अपनी जिंदगी की पहली गलती करने वाले थे आज, जिसका ना उन्हें अंदाजा था ना ही रोशानी को कि पारस के सख्त इंतहाई फैसले के पीछे क्या वजह है। और वो वजह ये थी कि वाटर बेस में शिफ्टिंग के दौरान हादी और सबील के हाथों फरीदोन कल लिए कई लोगों को जख्मी किए फरार हो चुका था, जबकि हादी ने सेरा को भी शूट किया, वरना वो भी भाग जाती। और ये खबर हादी ने सिर्फ पारस को दी थी। फरीदोन, जिसके अंदर एक आतिश फिशां बन चुका था, उसका फरार होना इस्माइल शराजी नाम के खतरे से कई गुना बड़ा वबाल था। सबील और हादी ने सेरा को वापस एफपी के हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया था, जबकि उसकी खबर ना ईगल को थी ना नज्फ को, क्योंकि वो लोग इस्माइल शराजी के लोगों से निमट रहे थे जो खत्म होने का नाम ना लेते मुसलसल एफपी पर हमला कर रहे थे। इस्माइल शराजी वहशियों की तरह मैदान में उतर चुका था। हिदायत बाबा ने 1 घंटे के बीच ही घर की सिक्योरिटी से रुशाने को निकलवाया, क्योंकि वो जितने पारस के गार्ड्स थे सब हिदायत बाबा के लोग थे, तभी उनके लिए जितना पारस का हुक्म अहम था, इतना हिदायत बाबा की कमांड ज़रूरी थी। रोशाने जब घर से निकली तो उसके पास उसकी गन थी, और इस लड़की ने चेंज करने की जहमत भी ना की और इसी कैजुअल हालत में हील्स समेत निकल गई, जबकि उसके साथ 4 प्रोफेशनल लोग थे जिनके पास गाड़ी, हर तरह का असलहा और बमबारी का सामान मौजूद था। वो पारस के पीछे ही निकल चुकी थी, जबकि पारस ने अपने तमाम लोगों को फरीदोन से अलर्ट कर दिया था। जिस तरह ईगल की तरफ से इसे मुसलसल इस्माइल की तरफ से हमले के सिग्नल मौसूल हो रहे थे, इससे यही मालूम हो रहा था कि फरीदोन अभी तक इस्माइल तक नहीं पहुंचा। तभी पारस के पास प्लस पॉइंट था, क्योंकि इन बाप बेटे का मिलना खतरे को बढ़ाने के मुतरादिफ था। इस्माइल का कैंप ज़्यादा सिक्योर नहीं था, क्योंकि इससे जो सिक्योरिटी के लोग मुयस्सर थे वो सब भी पैरासाइट की आर्मी के लोग थे, और इन लोगों में से आधे से ज़्यादा पारस के साथ कनेक्ट हो चुके थे। हमेशा वफादारी की जीत होती है। वो लोग भी इस्माइल के अपने ही डिफेंस ब्यूरो पर हमले से समझ चुके थे कि इस्माइल एंडी रंगहटा का खैर ख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन है, और यही वो लम्हा था कि इन सब ने पैरासाइट का साथ देने का फैसला लिए, सिग्नल्स फ्राहम शुरू कर दिए, जिससे पारस का इस्माइल के कैंप में घुसना मुमकिन हो चुका था। वहीं फरीदोन के दाएं हाथ में गोली छूकर निकली थी, पर वो एफपी के लोगों की पहुंच से बहुत दूर निकलने में कामयाब था। उसकी हालत सच में जंगली जानवर जैसी हो चुकी थी, जिसकी आंखों से मौत का सन्नाटा छलक रहा था, और उसका टारगेट थी रोशाने, जो उसके आदमी के बकौल इस्माइल शराजी के कैंप की तरफ रवाना थी। तभी फरीदोन ने इस्माइल के पास जाने के बजाय इस रास्ते पर पड़ाव डाला जिस रास्ते से रोशाने जा रही थी, यानी जिस खतरे से पारस ने रोशाने को बचाकर मुतमईन हुए अपनी जंग लड़नी शुरू की थी, उसके वहमो गुमान में बिना था कि वो खतरा रोशाने को निकलने के लिए तैयार है। उसके बाल जलाना फरीदोन, फिर उसे अजियत देकर मारना, वही मेरे और तुम्हारे यहाँ फंसने की असल जिम्मेदार है। पैरासाइट को तबाह सिर्फ रोशानी की मौत करेगी, याद रखना। उसके कानों में सहरा के भागते वक्त नीम जान सरगोशी सुनाई दे रही थी। फरीदोन ने इस वीरान सड़क के बीचों बीच रुककर अपने हाथ में मौजूद छीनी हुई गन की मैगजीन निकाली, जिसमें 4 गोलियां थी। उसके खास आदमी ने ही रोशानी के साथ 4 गार्ड्स का बताया था, और आदमी यहीं आसपास फरीदोन पर नजर भी रखने वाला था। बहुत मोहब्बत की थी मैंने आपसे याकूत, पर आपने इस मोहब्बत करते आशिक को वहशी बनने पर उकसा दिया है। जल्दी आए, आपकी राह तक रहा हूँ। आपको मारने के लिए मुझे 5वीं गोली की ज़रूरत नहीं, मैं खुद मौत बनूंगा आपकी, मेरी जान। वो हफ्ती बना इस सड़क के तारीख गोशे को तक कर हंसा। वो सालिम मौत बना खड़ा था, इस लड़की की जो इटली के पैरासाइट की सांसें थी। हातिब वेयर हाउस आया तो मिसबा मंसूर की जागी आंखें हरकत करता जंजीरों की गिरफ्त में जकड़ा वजूद खुशामदीदी को मिला। हातिम मुगदाब के अंदर आज क़यामत की सी सख्ती बरी थी। बहुत इंतज़ार किया था इसने अपने गुनाहों के से कोर रजाले का, पर जब वो मिसबा की तरफ बढ़ रहा था तो दिमाग में अमायमा की सुनाई जाती सजाएं हलकोर रही थी। 15 साल हफ्ती अमीर, 15 साल छूता रहा मैं तेरी बीवी को, और तुझे अब भी मुझे जिंदा रखकर सजा देनी है। हाउ बोरिंग एंड इरिटेटिंग। मुझे दर्द होना खत्म हो गया, अब मार दे, वरना ऐसा ना हो अगली बार इंतजार के लिए तुझे जिंदगी मोहलत ना दे, क्योंकि इस बार अगर तूने मुझे ना मारा तो मैं मार दूंगा। हातिब ने अपनी शर्ट अपने तन से यकलख निकाल कर दाएं तरफ दे मारी। वो मुसलसल अपनी कलाई को हाथ से पकड़े मरोड़ता हुआ
आंखों में लहू लिए मिसबा की तरफ बढ़ रहा था। इन हाथों से छुआ तूने अमायमा को? हातिम ने उसके करीब आते बड़े आराम से उसकी कुर्सी की बाजू पर सीधे बंधे हाथों को देखा। उसकी आवाज में जो वहशत हलकोर रही थी, इस पर मिसबा हफीफ सा घबराया। लेकिन जब अकब से एक आदमी के हाथ में ड्रिल मशीन देखी, तब मिसबा की आंखें खौफ से फैली। अगर मैंने तेरे हाथ काट दिए तो मर सकता है। सो हम खूबसूरत से दर्द पर इत्तफा करते हैं, इसे आन करो। हातिम ने आखिरी जुमला ड्रिल मशीन की वायर अपने आदमी को पकड़ाते इसे ऑन करने का कहा तो मिसबा ने मज़ाहमत करते हिलना बल्कि चिल्लाना शुरू कर दिया। हातिम ने ड्रिल मशीन ऑन होते ही मुस्कुराकर मिसबा को देखा, जिसके हौफ से थूक निकलने लगी थी। माथा इतनी ठंडक के बावजूद तर था। तो तू पागल है, मत कर, मार देगी, मत कर। मिसबा के हल्क से निकलती दिलहराश चीहों की रत्ती बराबर परवाह किए हातिम ने उसके दोनों हाथों में बेरहमी से ड्रिल मशीन की नोजल गाड़ी। खून के छींटे हातिम की वेस्ट पर और कुछ मिसबा के मुंह पर गए। वो दर्द से बिलबिला उठा। उसके पूरे जिस्म से भयानक दर्दनाक आहें फूट रही थी। उसके दोनों हाथों में सुराख करके हातिम ने वो घूमता खूनखार नोजल ऑफ किया और अंगूठे की पोर उसके हाथ से निकलते खून में तर किए सिसकते बिलकते मिसबा के गाल पर लगाए। इस पर वहशी अंदाज में झुक आया। अब ये हाथ तुझे खुद भी छूने लायक नहीं रहे। देख कितना परफेक्ट होल बनाया है मैंने इन दोनों में। जितनी बार तूने मेरी मायमा को छुआ था ना, अब हर सांस की हरकत के साथ तुझे जो दर्द होगा वो तलाफी होगी। इसके बाद मायमा से उसकी माएँ छीनने पर मैं तेरे सीने में सुराख करके तुझे जमीन में तड़पता हुआ गाड़ूंगा। इस अजियत को झेले बिना तू मर नहीं सकता था, तभी तुझे वापस जिंदगी की तरफ लाया गया। 24 घंटे तक तू ये दर्द सह, कल तुझे गाड़ कर मैं ये काम समेट दूंगा। हातिम वापस उठा तो मिसबा पूरी तरह चिल्ला रहा था। उसके हाथ मानो कट गए थे। एक एक करके अपने गुनाह आंखों के आगे झूलने लगे। वो तड़पता रहा, रहम के लिए बिलकता रहा, पर हातिम इसे 24 घंटे की फाइनल अजियत दिए वहां से निकलकर खुले आसमान तले आ रुका। सर्दी की शिद्दत बारिश से भयानक हो गई थी। जिस्म काटती हड्डियों में मुंतकिल होती ठंड में वो वीरान हाली आसमान को तक रहा था। बादलों से अटा आसमान उसकी तरह वीरान था। असूलन ऐसी सजा तो मायमा से उसके बाबा छीनने वाले को भी मिलनी चाहिए। जो हाथ तुम चूम नहीं सकती, मैं उन्हें पूरी सजा दूंगा मायमा। लेकिन कल 24 घंटे के बाद तुम्हारे इस दूसरे मुजरम की सजा शुरू होगी। तुम मेरी जिंदगी में आई तो कुछ पल में असूल परस्त आदमी असूल तोड़ने लगा, पर यही मेरी गलती थी। तुम मुझे पुकार नहीं सकती तो ऐसे हातिम के नाम को जिंदा रहने का हक नहीं। तुम मुझे देख नहीं सकती तो मैं दुनिया में किसी को दिखाई नहीं दूंगा। वो आंखें आंसुओं से भरी थी। वो नर्म दिल फट गया था। वो मर रहा था, वो अपने ही दिल के दुखने से मर रहा था। देखते ही देखते आसमान के बादल फट पड़े। बारिश के कतरे हातिम के वजूद पर लगे, इस नर्स लहू में घुल कर इसे उतारने लगे। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। वो पूरा भीगने लगा, पर इसमें जुम्बिश न हुई। उसकी सफ़ेद वेस्ट पर लगी खून ने धब्बों की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके दहकते वजूद को वो ठंडी बारिश शांत करने में नाकाम थी, क्योंकि इस शख्स का दिल, दिमाग और वजूद हर किस्म की शिद्दत से बेनियाज हो रहा था। बारिश जैसे आई वैसे ही 10-20 मिनट तक रुक गई, पर वो वहीं बैठते ही जमा पानी में लेट गया, बाजू फैलाए। उसका आधा जिस्म पानी में डूबा था। आसमान से बारिश के कतरे गिर रहे थे, पर हातिम ने अपनी आंखें मूंद ली। सख्त सर्द मौसम में वो यूं पड़ा था जैसे जिंदा लाश। हाँ, मोहब्बत को खो देने का खौफ पालता हुआ वो जिंदा लाश ही तो बन गया था। खाने पर हाशिम और परी ने दोनों का बहुत वेट किया, मगर ना मायमा आई ना हातिम, और तभी हाशिम मायूस हो गए कि शायद मायमा मना ना सकी, और तभी हातिम ने इसे भी रोक लिया। पर दर हकीकत इस वक्त दुनिया की कोई ताकत इन दो की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। रोशाने की गाड़ी झटके से सुनसान सड़क पर रुकी, क्योंकि ड्राइव करते आदमी को गाड़ी के टायर्स के नीचे कांटेदार पत्थरों के आने के सबब टायर के फटने का गुमा हुआ था। हल्की हल्की बारिश की अल्बेरिया में भी आज हो रही थी। वीरान सड़क के दाएं बाएं घना जंगल था, और यहाँ रात के इस पहर गाड़ी रुकना रोशाने समेत इन चारों को खतरा लगा। क्या हुआ? रोशाने ने अपनी गन पर पकड़ जमाते पूछा। मैम, मुझे लग रहा है टायर फट गया है। डिग्गी में एक्स्ट्रा है, क्या मैं बाहर निकल कर बदल दूं? रोशाने को आसपास के अंधेरे को देखते घबराहट सी हुई, पर वो यूं बीच रास्ते रुक भी नहीं सकते थे। ठीक है, सब एक साथ निकलते हैं। अपनी अपनी गन संभाल लो, मैं टार्च जलाती हूँ। रोशाने ने अपने फोन की टार्च ऑन की एक कमांड दी, जिस पर पिछले 3 आदमी भी गन्स लिए निकले। जबकि रोशाने भी अपनी गन पर पकड़ जमाती मुहतात होकर जब निकली,
तो रोशानी की नज़र सड़क पर बनी पथरीले पत्थरों की कतार पर पड़ी, जैसे किसी ने वो उनके रास्ते को रोकने के लिए बनाई हो। ये कोई चाल है टीम, मुहतात रहो। इससे पहले रोशानी चिल्लाकर इन्हें ब्रीफ कर पाती, 4 ये के बाद दिकरे फायर हुए और रोशानी ने जब डर कर हाथ से छूटते खून के सबब इर्द गिर्द होती रोशनी पर नजर घुमाई तो उसके चारों साथी सर में लगी गोलियों पर सड़क पर गिर चुके थे। रोशानी को लगा जैसे मौत का वक्त आ गया हो। इससे पहले वो चारों साथियों की जाकर नब्ज देखती, किसी के तमस हराना कहकहे पर फौरन उठकर गन इर्द गिर्द घुमाते फंकारी, कौन है सामने आ मरदूद। वो हल्के बल कर आई, जबकि वो दरख्तों की ओर से निकलता फरीदोन बिजली की रफ्तार से रोशानी के पीछे आया और एक ही झटके से उसके हाथ से गन लेकर अपने कब्जे में किए रोशानी को गाड़ी के बोनट से लगाते इस पर झुकते फतह मंदाना हंसा। रोशानी ने नीम सी रोशनी में फरीदोन को देखा। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में बुरी तरह काबू करे, रोशानी के स्कार्फ को बेदर्दी से उसके सर से उतारे, उसके हाथ बांधने लगा। बहुत प्यार था मुझे तुमसे, लेकिन तुमने देखो क्या सलूक करने पर मजबूर कर दिया। स्कार्फ उतरते ही रोशानी के सारे बाल बिखरे, जबकि वो मनहूस इस बुरी तरह झुका था कि वो टांगे भी हिलाने में नाकाम, बस हाथों की कुव्वत से उसकी गिरफ्त झटकने की कोशिश कर रही थी। तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी फरीदोन, इसलिए फुदकने की जरूरत नहीं। मैं तुझे दर्दनाक मौत दूंगी, मुझसे पंगे मत ले। फरीदोन ने उसके हाथ बुरी तरह कसकर स्कार्फ से बांधकर दोनों बाजुओं से रोशानी को पकड़कर बोनट से उठाया तो उसकी आंखों की नफरत पर वो पुरसरूर मुस्कुराया। पंगे नहीं, बड़ा वाला पंगा लेने वाला हूँ अभी तुम्हें। इस पंगे का मीठा सा दर्द भी फील होगा। वैसे बाल तो बहुत हसीन है मेरी जान के, इस भीगी रात में कैसे तारों से चमक रहे हैं। उफ बेबस रोशाने, आसान जुबान समझ लेती तो आज यूं बेयारो मददगार ना होती। उसके नर्ज हाथ रोशानी के बालों और उसकी गालों से गर्दन तक सफर कर रहे थे और वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू संभाल पा रही थी। मुझे मत छू, मैं तेरे हाथ काट दूंगी। खोल मुझे, फिर मुकाबला कर कुत्ते की औलाद, इब्लीस। मैं तेरी मर्दानगी को मफलूज ना कर दूं तो मेरा नाम रोशाने पारस नहीं है। खोल मुझे कुत्ते। वो पूरी कुव्वत से इसे धकेल रही थी और बस इसे जरा सी इस आदमी से दूरी चाहिए थी ताकि रोशाने अपनी पेंसिल हील का इस्तेमाल कर सके। मेरी तड़पती हुई रोशाने, यहाँ इस वक्त कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा जाना। मैं ही हूँ अब हर जगह। चलो अब जरा प्यार हो जाए, बहुत तड़प लिया मैं तुम्हारे लिए। रोशाने की मज़ाहमत और दलेरी ने इस आदमी के अंदर के जानवर को मजीद उकसा दिया था। जबकि इससे पहले फरीदोन रोशाने की पेंट ट्राउजर मेट की शर्ट निकालता वो जरा पीछे हुआ और इसी का फायदा उठाए रोशाने ने पूरी कुव्वत से घुटना फरीदोन के हसास मुकाम पर मारा। फरीदोन इस हमले के लिए तैयार न था। अभी वो संभल था कि रोशाने ने घूम कर हील की नोक फिर से उसकी टांगों के बीच दे मारी। फरीदोन दिलहराश कराहता खड़ा खड़ा बुरी तरह जमीन बोस हुआ और रोशाने वहशियों की तरह लपक कर इसे उठने का मौका दिए बिना सर पर आई और हील्स की नोक उसके हसास मकाम पर मारने लगी। कभी फरीदोन के पेट में, कभी उसकी टांगों, कभी वीक पॉइंट पर। वो सड़क किनारे और जंगली मटीले रास्ते पर गिरा बिन पानी मछली की तरह फड़फड़ाता हाथ में आई मट्टी उठाकर रोशाने के मुंह की तरफ उछाल गया, जिस सबब वो भी आंखों में जाती धूल और हाथ बंधे होने के सबब लड़खड़ा कर गिरने लगी, पर गाड़ी के बोनट का सहारा इसे गिरने से बचा गया। रोशाने ने वहीं से दौड़ लगा दी, जबकि फरीदोन के हसास मकाम से खून निकलने लगा। उसके बावजूद वो हिम्मत करते उठा और एक हाथ अपने दर्द पर जमाते बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ रोशाने की गन लिए पीछे ही दौड़ा। आगे स्ट्रीट्स की डिम लाइट्स के सबब रास्ता कदरे दिखाई दे रहा था। रोशाने दरख्त के पीछे आकर छुपी, क्योंकि हाथ आज़ाद करने सबसे अहम थे। वो स्कार्फ को रोज जोर लगाती खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि हील्स भी उतारे, क्योंकि इनके साथ भागना तकरीबन नामुमकिन था। फरीदोन की गिड़गिड़ाहट इसे बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। वो अपनी सांस की हाम संभालती, आखिरकार स्कार्फ के सिल्की होने के सबब ढीला पड़ने पर अपने हाथ आज़ाद करते ही बैठी और दोनों पैरों से वो हील्स उतार कर उनकी स्ट्रिप से दोनों को पकड़ लिया। फरीदोन बुरी तरह दर्द पर आहें बढ़ता साथ साथ वहशियों की तरह से ढूंढ रहा था। मिट्टी की आंखों में जाने की वजह से रोशाने को सब धुंधला दिखाई दे रहा था। ऊपर से दरख्तों के झुंड की जानिब फिसलन भी हो चुकी थी। रोशाने ने अपने तेज होते सांस को संभाला और अल्लाह का नाम लिए वहां से जंगल के रास्ते दौड़ी। तभी फरीदोन की नजर में आ गई, वो भी पीछे ही लपका, जबकि रोशाने के पैरों में पत्थर, कांच और न जाने क्या क्या धुस रहा था। पर वो इस वक्त सिर्फ खुद का बचाव करने पर लगी थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके पैरों से निकलते खून ने रोशाने से भागना दूर, मजीद चलना दोबर कर दिया और रही सही कसर फिसलन से पूरी हुई कि वो बुरी तरह गिरी। उसके मुंह से निकलती चीख पर फरीदोन, जिसका वो सब फोड़ चुकी थी, वो कमीना सर पर पहुंच आया। रोशाने जो उठने की कोशिश कर रही थी, फरीदोन को गन लेकर सर पर खड़ा देखे अपनी कोशिश रोक गई। हाथ को दाएं तरफ फेरा ही कि पत्थर जैसी चीज मुट्ठी में आई।
فریدون نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھ لی، تبھی اس کے پاس ہی دو زانو بیٹھے جب روشانی کی گردن پر ہاتھ رکھا تو وہ دم گھٹنے پر مٹھی کھول گئی، جس پر فریدون نے اس کے ہاتھ سے پتھر اچک لیا۔ روشانی نے ہمت نہ ہاری، ہاتھ مزید پھیرا تو ایک نوکیلی سٹک مٹھی میں آئی، اور اس سے پہلے وہ آدمی روشانی کی گردن پر جھک کر دانت گاڑتا، روشانی نے زندگی بھر کی ہمت جمع کرتے وہ نوکیلی سٹک پوری قوت سے فریدون کے کندھے میں گاڑنی چاہی، جس سے اسے کچھ ہوا نہیں، پر وہ بری طرح پیچھے جا گرا۔ روشانی نے جلدی سے سنبھل کر اپنی گن اٹھائی جو فریدون کے پاس تھی، اور فریدون کو ہلنے کی مہلت دیے بنا اس کے سینے میں 2-3 فائز اتار دیے۔ وہ آدمی وہیں دم توڑتا ڈہ گیا، جبکہ روشانی سسک اٹھتی اس منحوس کی بوجھ سے خود کو آزاد کرے درخت کا سہارا لیے اٹھی اور واپس اپنی گاڑی کی طرف دوڑی، مگر جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی، فریدون کے اس چھپے آدمی نے گولی ٹھیک گاڑی کے پیٹرول کیبنٹ پر ماری، اور روشانی نے جواباً اس آدمی پر فائر کیا، مگر دھماکے سے گاڑی میں موجود مواد کے پھٹنے پر وہ دھمک سے دور جا گری، اور اس سبب اس کے بالوں کے پاس آ کر گرتا آگ پکڑے ٹکڑا اس کے بالوں کی ٹپس کو آگ لگا گیا، مگر بارش کے تھوڑا تیز ہونے کے سبب روشانی کے بالوں کے کنارے لگی آگ جلد دھواں بن گئی۔ گاڑی کے پھٹنے سے ہر طرف دھواں پھیل گیا جو بارش کی وجہ سے مزید حبس بنا۔ روشانی نے جب مشکل سے خود کو اٹھایا، مگر اس سے پہلے 2 قدم ہی اٹھا پاتی، سر چکرانے پر بری طرح وہیں گری۔ وہ پارس کی زندگی کس حال میں آ گئی اس سے وہ شخص بے خبر تھا۔ اف، قیامت تو یہ تھی، واللہ میں چاہتی تھی میں آپ کی حفاظت کرتے مروں پارس عیسیٰ مغلانی، پر آپ نے مجھے اپنی کمزوری بنا کر خود سے کوسوں دور تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ موت میرا ڈر کبھی رہی نہیں، میرا اکلوتا ڈر آپ سے بچھڑنا تھا، آج وہ بھی چلا گیا۔ گہری تاریک رات میں وہ بے یار و مددگار اس ویرانے میں پڑی سے یاد کر رہی تھی جسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کی روشانی مر رہی ہے۔ وہ پارس کے ساتھ گزرے ہر خوبصورت لمحے کو سوچتی، نم آنکھوں سے سسکتی، مسکرائی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوئی تو سانس کی ہامتی آواز بھی تھم گئی۔ جب وہ بے دم ہو کر اس ویرانے میں گری تب پارس جو اسمال کے کیمپ کو اپنی ٹیم کے ہمراہ چاروں طرف سے گھیر چکا تھا، بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کر رہا، جیسے کسی نے اس کے دل میں سلاخ گاڑ دی ہو۔ روشن نے ہونٹوں سے بے اختیار پکارا، لیکن آگے جو سچویشن تھی اس نے پارس کو جذبات پرے کرنے پر مجبور کیا۔ وہ لوگ اس وال کے کیمپ کو جگہ جگہ سے اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ہدایت بابا کا جب اپنے لوگوں سے رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے مزید لوگوں کو گاڑی کی لوکیشن کے پیچھے روانہ کیا، اور تب ارد تلاش کے بعد انہیں فریدون کی لاش کے قریب ہی روشانیں بہت بری حالت میں ملی۔ ہدایت بابا سرکار تک جب تک لوگوں نے خبر پہنچائی کہ روشانیں سانس نہیں لے رہی، وہ ترنت بیورو چھوڑ کر کیلیبریا کی فلائٹ لے کر روانہ ہوئے، جبکہ فریدون کی لاش وہیں چھوڑے وہ لوگ روشانے کو وہاں سے لے کر ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ جب تک ریسکیو کے لیے ٹیم پہنچی تھی وہ زندگی ہارنے کے دہانے پہنچ چکی تھی، اس کی دھڑکن بہت سست تھی، اسے ایمرجنسی میں لے کر جایا جا چکا تھا کیونکہ آگ لگنے کے باوجود بے وقت بارش سے بھلے وہ جلنے سے بچ گئی ہو، پر دھواں اس کے پھیپھڑوں میں بھر گیا تھا۔ اسے اسٹریچر بیڈ پر لٹایا گیا تو وہ بے سدھ تھی۔ پارس عیسیٰ مغلانی کی جل پری برے حال میں تھی، مگر تسلی کی بات تھی کہ وہ زندہ تھی، مگر اس کے چہرے پر کئی خروچیں آ چکی تھی اور اس کے لمبے بال جل کر کندھوں تک ہو چکے تھے، اس کے وہ بال جو پارس کے فیورٹ تھے۔ اسے ہدایت بابا کے اسپیشل حکم پر کیلیبریا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ایمرجنسی سیکرٹ کیس کی صورت لے جایا گیا تھا، جبکہ ہدایت بابا سرکار کی زندگی میں یہ 2 گھنٹے کی فلائٹ کسی قہر سے کم نہ تھی۔ وہ اپنی اس خطا پر شرمندہ تھے کیونکہ روشانی کی اس حالت کے ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہے تھے، اور ان کی سانسیں سینے میں تب تک اٹکی رہتی جب تک وہ اپنی بچی کے پاس نہ پہنچ جاتے۔ جاری ہے، کیسی لگی ایپی؟ تو آج جو روشانی کے ساتھ ہوا اس میں کس کی غلطی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ روشانی کی، پارس کی، یا ہدایت بابا کی؟ حاتب کے پاگل پن اور مائمہ کی تکلیف کا اینڈ کیا ہو سکے گا؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ناولز کی لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ تھرلنگ اور اسپیشل ہونے والی ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر ایپیسوڈ 75 میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔